Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, my dear students, my professional managers, my learning young men and women. How do you feel motivated? We are learning the concepts of motivation and the principles of management. Objective of these concepts is nothing more than how can we become an effective manager? How can we be a kind of an asset for the organization in which we are going to work for? How can we bring profitability and productivity at home, in society, in the country? In other words, what kind of behavior is required from you and from me, from all of us? Remember I said, your behavior affects me and my behavior affects you. So that's why we are trying to learn those theories, regardless where they were developed and when they were developed. We will use those concepts. We will put them in our purse or in pocket. We will use them the way they will be required. We will be equipped in the best way possible, and in the days and the years to come, we will try to perform in a way which will promote our career, which will present us, you and me, as a professional manager. Speaking on the issue of motivation and today on leadership, believe me, it's all behavioral. It's unpredictable, I know. It's a bit difficult. Yes, I agree. लेकिन देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही थी. How can I keep your behavior between a range? Remember I said, it should not be boiling off. It should not be breaking away. It should not be burning out. It should not be boiling away, moving away. A kind of situation, a kind of behavior, a kind of range in which people around you, people in the organization, customers in the market, boss and the colleagues, ladies and the gentlemen, all feel happy, all feel productive. So in other words, motivation is nothing more than a kind of actions, those actions which will of course relate our performance to the best outcome. So we looked into the equity theory last time. We also learned the concepts of expectancy theory. And remember, हमने गोल सेटिंग थ्योरी की बात की थी. अच्छा, मुझे गोल्स वैसे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए कि गोल्स आर ऑलवेज इन फ्यूचर, राइट? मुस्तकबिल से आपको रिलेट करते हैं. और फिर देखिए, मुस्तकबिल से जब आप रिलेट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यू आर ट्राइंग टू एसोसिएट योरसेल्फ विद द ऑर्गेनाइजेशन, विद द रूट्स. पैवस्तरा शजर से उम्मीदें बहार रख. स्प्रिंग विल कम, goals will be achieved, you will be successful. Remember we said success will bring appreciation. तो ये सारी चीजें माय डियर स्टूडेंट आपस में इंटर रिलेटेड हैं. अच्छा, फिर ऐसा तो कोई मसला नहीं कि आप किसी छोटे शहर में हैं, कस्बे में हैं, गांव में हैं या बड़े शहर में हैं. मोटिवेशन तो सबकी जरूरत है. सही कह रहा हूं ना मैं? सबकी जरूरत है. खवातीन की भी, हजरात की भी, यंग की भी, पुअर की भी, रिच की भी, एजुकेटेड की भी, लेस एजुकेटेड की भी, अनएजुकेटेड की भी. हमें ऐसे लोग चाहिए. वो कहते हैं कि एवरीबडी कुड बी नाइस टू ए किंग, बट इट टेक्स अ लीडर टू बी नाइस टू ए बैगर. बैगर भी तो इंसान है. So we're trying to learn how we keep ourselves motivated, energized, activated. Our energy is focused, directed. So the goals are achieved, goals are set, and we keep on moving. Movement जिंदगी है. जिंदगी ग्रोथ के साथ अटैच है. और मोटिवेशन और लीडरशिप के कॉन्सेप्ट यही बताते हैं कि खुद भी जिंदा रहिए,
लोगों को भी जिंदा रहने का मौका दीजिए, खुद भी ग्रो कीजिए, लोगों को भी हेल्प आउट कीजिए कि वो कैसे ग्रो करें। हां, किन प्रिंसिपल्स को आप यूज करेंगे, किस वक्त, किस कंडीशन में कैसे आप बिहेव करेंगे, आई लीव इट टू यू। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट एंड यू विल इंप्लीमेंट देम एंड यू विल बी एन इफेक्टिव मैनेजर। आज हम लीडरशिप के कॉन्सेप्ट से पहले वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ हाउ टू मोटिवेट द प्रोफेशनल्स को मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वो कहते हैं जी हम तो लॉजिकल हैं, हमारा तो दिमाग काम करता है, हमारी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो स्पीक आउट करती है। यस, आई एग्री, बट यू नो आई डोंट सी इनसाइड द ब्लैक बॉक्स। रिमेंबर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? आप में से जो आईटी के लोग हैं, I don't know what's in the box. All what I know is, show me. White box. Show me your behavior. Your behavior will tell me what's in the black box. Keep the black box to yourself. Keep the process to yourself. I will see what you present. And believe me, the package, the personality, the behavior is very important. Ready to learn motivation and leadership concepts? Ready to become a good leader, a business leader, a businesswoman, and a business manager? And then we also see what is the difference between a leader and a manager, and when you're going to act as a leader and when as a manager. अच्छा, फिर लीडर और मैनेजर की जब हम बात कर रहे हैं, ये ना भूलिएगा, हर अच्छा लीडर अच्छा मैनेजर भी होता है। हमने इक्विटी थ्योरी की बात की, हमने एक्सपेक्टेंसी के अंदर इंस्ट्रूमेंटैलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा, वेलेंस का कॉन्सेप्ट आया। रिमेंबर वी सेड पीपल वुड प्लेस वैल्यूज टू डिफरेंट आउटकम्स एंड यू कैन नॉट हैव वन टारगेट, वन बेंचमार्क, वन स्टैंडर्ड। नो, गोल सेटिंग की हमने बात की और हमने कहा गोल्स डिफिकल्ट होने चाहिए येट अचीवेबल। गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, परफॉर्मेंस फीडबैक भी मिलना चाहिए। फिर हमने रीइंफोर्समेंट की बात की कि इंसानी फितरत यह है कि जिस बिहेवियर पर उसको अप्रिशिएट किया जाएगा वो दोबारा भी उसको करना चाहेगा। तो लेट्स ट्राई टू अप्रिशिएट पीपल, एंड इन केस इफ समथिंग गोज रॉन्ग, लेट्स ट्राई टू पनिश देम इन अ वे दैट वी गिव them a latitude of being a human. Human means people will make mistake. आप भी गलतियां करते हैं, मैं भी करता हूं. Let's accept it. Nobody is perfect. तो लोगों को ग्रो करने का मौका दीजिए. तो आइए फिर देखते हैं कि प्रोफेशनल्स को कैसे मोटिवेट किया जाए, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं. इसलिए कि प्रोफेशनल्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है. वो शख्स जो खाना पकाता है अच्छे होटल में, जरा कभी पूछिएगा उसकी तनख्वाह कितनी होती है 4 स्टार या 5 स्टार होटल के शेफ की. thousands and thousands, sometime even lakhs. वो भी एक मैनेजर है, वो भी एक प्रोफेशनल है. How about boutiques, salons, hair salon, वो भी प्रोफेशनल है. ब्यूटी सलोन्स, वो भी प्रोफेशनल्स हैं. ड्राइवर्स, वो भी प्रोफेशनल्स हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड एवरीबडी who is doing his job in the best way possible. To me, he is professional. He needs to be respected. She needs to be respected. Let us see then how to motivate professionals. Number 1, they are more loyal to their profession. Am I right? Professionals, they are more loyal to their profession rather than organization. वो कहता साहब हमारे प्रोफेशन की बात कीजिए पहले, ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट, लॉयल्टी भी आएगी. अच्छा, फिर ये तो 2-way प्रोसेस है. ऑर्गेनाइजेशन भी तो हमारे साथ लॉयल हो, ऑर्गेनाइजेशन भी तो हमारे प्रोफेशनल्स के साथ, प्रोफेशन के साथ कमिटेड हो. कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया टूल, कोई नई ट्रेनिंग, इज ऑर्गेनाइजेशन विलिंग टू इन्वेस्ट
इन माई प्रोफेशन। तो अगर प्रोफेशनल्स को मोटिवेट करना है और आपकी कहीं जिम्मेदारी ये लगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्लीज कीप इन माइंड प्रोफेशनल्स, रिगार्डलेस इन विच प्रोफेशन दे आर, अकाउंटेंट, मार्केटियर, HR professional, IT people, even operation specialist, technologist, doctors, nurses, beauty salon, hair salon, you name it, all of them are professional. They love their profession and they are loyal to it. So keep in mind, please, they are more loyal to their profession than to the employer. आप बताइए, मैं गलत तो नहीं कह रहा? मेरे नजदीक आप सब प्रोफेशनल हैं। अच्छा, तो फिर अगर ये बात है तो फिर हमें जहन में रखना चाहिए, हमें उनके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नंबर 2, अगर मैं उनका बॉस हूं तो मुझे उनके प्रोफेशन में प्रोग्रेस करने के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए। हाउ टू लर्न मोर टेक्निक्स, बेटर टेक्निक्स, हाउ टू एक्सेल इन द प्रोफेशन। हां, जो एम्प्लॉयर मेरे प्रोफेशन के मुझे हेल्प करेगा, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, जो मुझे अच्छा टीचर बनाने के लिए, अच्छा ट्रेनर बनाने के लिए, अच्छा कंसल्टेंट बनाने के लिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सिखाएगा, अच्छी पीपल स्किल सिखाएगा, अच्छी इंटरपर्सनल स्किल सिखाएगा, अच्छी डिसीजन मेकिंग स्किल सिखाएगा, आई वुड बी लॉयल टू हिम, आई वुड बी लॉयल टू दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट you have to keep in mind. And when you become responsible and a boss of some professionals, अच्छा, जैसे मैंने कहा ना, treat everybody as a professional. जो आदमी अपना काम जानता है, मेरे नजदीक वो प्रोफेशनल है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो। अगर वो अपना काम ठीक कर रहा है, अपनी टास्क सही परफॉर्म कर रहा है, अपने टाइम को सही कंज्यूम कर रहा है, he needs to be respected. And issue number 2, how to motivate professionals. They view and value. दोनों चीजें हैं. They view and value challenging jobs and they need the support for their work. I'm ready to give my best potential, but I need some challenging job. Give me a kind of algorithm to solve a logic. Give me a kind of problem where I will develop a better algorithm. Give me challenge. I'll do it. ये इंसानी फितरत है। तो कोशिश कीजिए अपने कुलीग्स को, अच्छा, मुझे कहने का मौका दीजिए कि वो टीचर जो घिसे पिटे सवालात देते हैं, रिपीट करते हैं, स्टूडेंट्स को भी पता चल जाता है, आपको भी पता चल जाता है, आप बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन अगर हर दफा एक चैलेंजिंग असाइनमेंट हो, एक चैलेंजिंग टास्क हो, आई नो इट विल बी डिफिकल्ट, बट वंस द एग्जाम विल बी ओवर, आपका कुछ प्रेशर अपने दिमाग पर इस्तेमाल करने के बाद सवालों के जवाब आएंगे, तो आप कहेंगे हाँ, मजा आया आज एग्जाम का, कुछ मुश्किल तो था लेकिन लगता है प्रोफेसर ने भी मेहनत की थी, हमने भी बड़ी मेहनत की। चैलेंज, you feel motivated. Professionals tend to derive intrinsic satisfaction. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मेरा ख्याल है आप मुझसे एग्री करेंगे, मैं तो इसमें बिलीव करता हूं। मुझे 5,000 कम दे दीजिए, मुझे 3,000 कम दे दीजिए, मेरी रिस्पेक्ट को मत छीनिए। प्रोफेशनल, आई नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड, आई नीड टू बी अप्रिशिएटेड, आई नीड टू बी अवॉर्डेड, आई नीड टू बी रिवॉर्डेड। इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन, मैंने कहा था ना, चैलेंजिंग जॉब इटसेल्फ इज एन इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन। प्रोफेशनल्स ऐसे इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन को ज्यादा वैल्यू करते हैं। वाई? वेरी सिंपल, बिकॉज आई थिंक यू एंड मी, वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी कैन सर्व हियर। ओके, इफ यू डोंट नीड माई जॉब, if you don't need my services, I'll find another place. I'm confident. तो इस चीज को जहन में रखिए। वो जो हायर एंड फायर कि जी एक निकालेंगे 2 और आ जाएंगे, मत भूलिए इस बात को
कि 21st सेंचुरी में ये वक्त आ गया है कि इवन वो शख्स कि जो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम कर रहा है, अगर वो अपना काम ठीक कर रहा है, आपकी कंपनी के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है। तो मुझे कहने का मौका दीजिए कि प्रोफेशनल्स फ्रॉम गेट एग्जेक्टिव टू द चीफ एग्जेक्टिव, एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो दे आर लुकिंग फॉर इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर वर्क एंड दे एक्सपेक्ट हायर पे। देखिए, जब मैं कंपनी के मिलियंस ऑफ रुपीज की प्रॉफिटेबिलिटी का बायस हूं, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम गिविंग माई माइंड, आई एम गिविंग माई हार्ट। इन रिटर्न, I do expect that the company should also be, organization should also be committed to me. That's how I will feel motivated. इसका मतलब यह हुआ कि फिर हमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी होंगी कि जिससे 21st सेंचुरी में उन थ्योरीज को तो जरूर आप यूज करें, लेकिन कीप इन माइंड द न्यू कॉन्सेप्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट, अ लिटिल ऑटोनॉमी, my way of doing things. Give me some way, let me use my mind. I'll give you solution. Empowerment. Trust them. Give them power. I think they will bring stars for you. Number 2, participation. Involve them in decision making. अभी हम लीडरशिप में फिर देखते हैं कि कैसे लीडर पाए जाते हैं और किस लीडरशिप स्टाइल का क्या इफेक्ट होता है। But people are different, personalities are different, managers are different, concepts are there, you can learn, you can leave them, you can take home, you can put them in your mind, you can put them in your heart, or you can simply put them in the file and close it. Number 3, variable work schedule. क्या ख्याल है, जरूरत है आपकी? अच्छा, जरूरी नहीं कि हर ऑफिस में ऐसा वर्क शेड्यूल बनाया जाए। Work schedule depending upon the type of workforce you have, depending upon the type of people you have. वक्त आने वाला है कि लोग कहेंगे, साहब, I can't give you my month. Tell me how many hours you need. I'll give you hours. You give me project. I'll solve it. I'll deliver it, regardless wherever I am. Keep in mind variable work schedule or work schedules. Sometimes it could be compressed work schedules. You want to work hard. You want to work long hours and then take some time off. So this kind of flexibility should be there. And please keep in mind, it's always better to bend than to break. Don't let people break away. Flexible work schedule, flexible work hours, flexible time, job sharing. Is there anyone who can share my job? Telecommuting का नाम आपने सुना होगा. People are there. Trends are changing. Telemarketing का नाम आपने सुना होगा. These are new trends. These are new strategies which are required to motivate the professionals. So this means, my dear students, kind of reward system should be developed which must meet an individual's needs. Yes. Lower level need, higher level need. Intrinsic needs, extrinsic needs. But these rewards should compare favorably with the other organizations. लोगों को पता होता है कि फलां कंपनी क्या पे कर रही है। आप अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देकर, अच्छे कुलीग्स को इकट्ठा करके 10%, 15%, 8% सैलरी तो कम कर सकते हैं. That's okay. But if there is a difference of 50%, I'm sorry, it's not going to work out. So reward system should be fair. अगर आप ये समझते हैं ना कि किसी को पता नहीं चलेगा, मुमकिन नहीं है. ये इंफॉर्मेशन इकोनॉमी का दौर है, ये इंफॉर्मेशन एज है, चीजें अवेलेबल हैं, आप कितना ही छुपाएं मिल जाती हैं. ऐसा ना हो कि जब उसको पता चले तो वो छोड़ जाए और आप ये फील करें कि आपने एक अच्छा प्रोफेशनल लूज किया, एक अच्छा वर्कर लूज किया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स मस्ट बी परसीव्ड टू बी इक्विटेबल. इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट.
2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो सकता है कोई ना बोले, लेकिन पीपल आर वॉचिंग, पीपल आर कंपेयरिंग, प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स, दे डू कंपेयर। तो एक इक्विटेबल सिस्टम डेवलप कीजिए कि जिससे एवरीबॉडी शुड फील विद इन अ रेंज हैप्पी। मैं नहीं कह रहा हूं कि हाईली सेटिस्फाइड, लेकिन सेटिस्फाइड तो जरूर हो, डिससेटिस्फाइड ना हो। रिवॉर्ड सिस्टम मस्ट रिकॉग्नाइज डिफरेंट नीड्स। देखिए, अगर सीनियर वर्कर्स हैं, दे वुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू पेंशन प्लान, हेल्थ प्लान, इंश्योरेंस प्लान। अगर ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स, फोरमैन हैं, मे बी दे वुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द ट्रांसपोर्टेशन। कोई मोटरसाइकिल अलाउंस है, कोई साइकिल अलाउंस है, कुछ तो हो, कोई हाउस बिल्डिंग अलाउंस है। नीड्स, वी हैव टू कीप different needs in mind. Merit system, incentive system. They will give you more, they will earn you more. लेकिन ये जो बिग पीस ऑफ केक है ना, मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे सारा केक दे दें, लेकिन इतना पीस तो हो कि मुझे भी केक का मजा आए। लेकिन अगर सारा केक मेरा बॉस ही ले जाए, ये सारा केक मेरी कंपनी ले जाए, अच्छा सारा केक तो खाया भी नहीं जा सकता। मजा इसी में है कि शेयर किया जाए। और देखिए, शेयरिंग की जब बात हो रही है तो आप छोटा सा पीस दीजिए तो सही, वो बात करेगा, अप्रिशिएट करेगा, आपको याद करेगा। और जब कोई शख्स आपको याद करता है अच्छे अल्फाज से, ये आपका रिवॉर्ड नहीं है, इसकी कीमत आपको नहीं मिल रही। And being a Muslim, I believe in it. When somebody speaks good about you, it's recorded, it's documented, it's a credit for you. Let's earn it. It's very easy, it's very cheap to be nice with people, so people will remember you in the nice words. That brings me to another exciting area. My dear students, area of leadership. Motivation is good. But then what is the difference between leadership? I said motivation was a force to energize. Motivation was a force to lead you, to direct you, to make sure that you keep on coming back. Then what is leadership? My dear students, leadership is a force which comes from inside. It's inspiration. When I see his face, I feel motivated. उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे देखते ही ऐसे जैसे मुझे बिजली सी लगी। उसकी शख्सियत, उसकी खुसूसियात, उसका काम करने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, उसका लिबास, उसकी आउटलुक, उसका किरदार, उसकी गुफ्तार, हर चीज ऐसी है जो काबिल तकलीद है। लीडर। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लोग कहते थे, हमें नहीं मालूम बाबा जी इंग्लिश में क्या कहते हैं। अनएजुकेटेड पीपल जो इंग्लिश नहीं समझते थे, हमें नहीं मालूम बाबा जी इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमें इतना मालूम है कि ठीक कहते हैं। लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट सेक्टर में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि पब्लिक या नॉन प्रॉफिट सेक्टर में। दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑफ अस, एट होम, इन ऑफिस, ऑन द स्ट्रीट, एंड बिलीव मी, this is something which influence others. Are you ready to learn the concepts of leadership? I enjoy teaching this. In fact, whenever I interact with new students, I learn from them some new concepts of leadership, and then I implement them. I enjoy it. I'm sure you will enjoy these concepts of leadership. Theories, देखिए, theories अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं. Theories से हम कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, फिर आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं. आप में से जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कोर्स लेंगे, ये कुछ कॉन्सेप्ट वो फिर दोबारा रिपीट करेंगे, मजीद डेप्थ में देखेंगे
ये चूंकि बेसिक कोर्स ऑफ मैनेजमेंट है तो थ्योरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर ये लीडरशिप का तो एक ऐसा एरिया है, एक समुंदर है। पीपल आर इंटरेस्टेड, मैनेजमेंट प्रोफेसर्स, मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट्स, दे आर ऑल इंटरेस्टेड हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दैट दे हेल्प मी टू अचीव माई गोल्स। लेकिन देखिए, सेल्फिश अप्रोच नहीं होगी। लीडरशिप इज a two-way street. Let's learn what are these concepts. Who is a leader? Leader is a person, my dear students, वो कोई टार्जन नहीं होता। He or she is an ordinary person, but he is or she is. Gender bias भी नहीं है। There are many famous women professionals working in the business, bringing millions and billions of dollars of business. हम चूंकि बिजनेस के पर्सपेक्टिव में इस वक्त लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं। So leader, he or she is a person who can influence others, groups, teams, people, and who has managerial authority. Of course, you need authority. You need power to influence others. And there are various types of powers. There are various ways how you will influence. That's why we will see various theories of leadership. And then, once again, we will leave a choice to you, which theory you will choose, which style you will choose. देखिए, मैंने स्टाइल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। स्टाइल तो किसी एक स्टाइल एक सीजन में रहता है, एक साल में रहता है, फिर चेंज होता है। यंग लाइफ में कुछ और स्टाइल था, मिड एज में कुछ और है, सीनियर एज में कुछ और है। दिस इज डायनेमिक, दिस मेक्स यू फील यंगर, दिस मेक्स यू फील मोटिवेटेड। सो ऑल मैनेजर्स should ideally be leaders, but not all managers have the ability, I said ability, to be an effective leader. Let's learn that why you could be a good manager but not a leader, and what is the difference. And are leaders made or are leaders born? The research tells us, the theories tells us, leaders can be made. You can learn those leadership skills. देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा था, living in a small state, living in a small city, living in a small village does not require from you that you cannot become an effective leader. Learn those skills, communication skills, interpersonal skills, marketing skills, negotiation skills, persuasion skills, decision-making skills, hundreds of skills. As you keep on learning, people will notice. People will realize how you will control yourself, how you will control others. It's up to you, my dear students. It's up to you how you learn these concepts and how you become effective leader. But once again, leadership is a process. Everybody can learn. If there is a will, you will find a way. So leadership is a process of influencing others. अच्छा, ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रेसिपी नहीं है जो मैं आपको दे दूं कि साहब ये मॉडल ले लीजिए आप, you will be able to influence others. No. Hour to hour, minute to minute, strategies do change. Influencing others and working in the organization, what is the purpose? To achieve those goals. Remember I said goals have a force. Is there anyone who can influence us, who can push us to achieve those goals? अच्छा, पुशिंग भी ऐसी कि पता ना चले। वो जो आपने बॉडी को पुश किया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। माइंड को पुश कीजिए, हार्ट को पुश कीजिए, दिल में जगह बनाइए, दिमाग के अंदर अट्रैक्शन पैदा कीजिए अपने लिए
दूसरों के लिए। इसलिए मैंने लिखा है कि इट्स अ वेरी हैवीली रिसर्च टॉपिक, मेनी प्रोफेसर्स आर वर्किंग इन इट, मेनी थ्योरीज आर बीइंग डेवलप्ड, इट्स एन एक्टिव टॉपिक। सी हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स, the way you can influence in one culture, the way you can influence in one organization, the way you can influence in one country may not be replicated in another country. Culture is different, habits are different, beliefs are different, values are different. So isliye please keep in mind it's a process how you influence others so that working together goals can be achieved. Let's see a little difference between a leader and a manager. देखिए साहब, हम ये कहते हैं कि manager is a person who will do things according to the given procedure, right procedure. आपने हमें कहा था ingredient A plus B plus C इस मिकदार में, इस टेम्परेचर पर, इतने घंटे के लिए मैंने प्रोसेस को फॉलो किया, मैंने पूरी एफर्ट की, मैंने तो परफॉर्म किया। लेकिन साहब आप मुझे बताइए, आई हैव डन द राइट थिंग, आई हैव डन द थिंग्स राइटली, परफॉर्मेंस मैंने शो की है। अब आउटकम क्या निकला है पता नहीं, वो आउटकम वही है जो चाहिए था। ब्लाइंडली फॉलोइंग द प्रोसेस, इसको बाजू का हम कहते हैं जीरो लूप लर्निंग। जो मुझे दिया गया मैंने आंखें बंद करके उसको फॉलो कर लिया, डूइंग द थिंग्स राइटली। मैंने बिजली के मीटर, बिजली का बिल, मीटर से जो रीडिंग आई थी वो मैंने फीड की, प्रिंटर से मैंने बिल ले लिया, भेज दिया, आई हैव डन माय जॉब। अब ये तो वो कस्टमर को जब बिजली का बिल मिलेगा तो फिर पता चलेगा कि वो सही मीटर रीडिंग का है या नहीं। प्रिंटिंग द बिल थ्रू द प्रिंटर, sending it to the right customer, you have done the things rightly. But leader is the one who do the right things. क्या रीडिंग थी, क्या बिल के अंदर उतनी ही है? ऐसा तो नहीं कि 100 यूनिट की बजाय 1000 यूनिट का बिल चला जाए और उस कस्टमर को जब वो मिले तो उसका शुगर लेवल ही बढ़ जाए। तो मैनेजर ने तो अपना काम दिखा दिया, but leader would like to see that I will do the right things. और अगर मुझे कहीं थोड़ा सा ट्यून अप करने की जरूरत हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा विजिलेंट रहने की जरूरत हो, I'll do it. Because I will lead myself and I will lead those things which are right things. Manager will try to keep the status quo. चेंज में जरा मुश्किल होती है, अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है। भाई एक लगा बदा तरीका है, चल रहा है, ठीक है, डे इन डे आउट, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, ये भी ठीक है, स्टेटस को। लेकिन लीडर कहता है कि नहीं साहब, जिंदगी नाम है किस चीज का? ग्रोथ का। ग्रोथ इज मूवमेंट, चेंज। नेचर का उसूल यह है, टाइम चेंजेस, लाइफ चेंजेस, कंडीशन चेंजेस। सूरज जहां से आज निकला है कल वहां से नहीं निकलेगा। चेंज, इट्स डिफिकल्ट, आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट ही बिलीव्स जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल नहीं जिया करते। स्टेटस को मीन्स द हार्ट इज देयर बट इट्स ए पंपिंग मशीन। Change means the heart is there, but it's full of energy. It's full of life. I am where my heart is. Manager is the one who has a short-term focus, quarter focus, 6-month focus. Leader is the one 5 years focus, 3 years focus, long-term focus. My dear students, manager believe in means. क्या तरीकेकार अख्तियार करूं कि गोल अचीव हो जाए। लीडर फोकस ऑन द एंड्स। आई वुड अचीव दैट गोल रिगार्डलेस व्हाट मीन आई हैव टू अचीव। एथिकली, मॉरली, आई एम बाउंड, रिस्पॉन्सिबल टू अचीव दोज गोल्स। आई विल डू इट
no matter what it takes. Manager is given a recipe, he will build a machine, a technology, a process, a product. Leader is an architect. डिजाइन वर्क. देखिए, डिजाइन पहले आपके माइंड में बनता है, फिर आप उसको पेपर पर लेकर आते हैं. जब पेपर पर वो आ गया, वो तो फिर आप किसी को भी दे दीजिए, वो उसको बिल्डिंग खड़ी कर देगा. लेकिन बिल्डिंग बनने से पहले एक जहन में खाका आया. वो कैसी होगी, कितनी खिड़कियां होंगी, कितनी मंजिलें होंगी, उसका एलिवेशन कैसा होगा, क्या लुक होगा. आज की डिमांड क्या है? आर्किटेक्ट. लॉन्ग टर्म फोकस. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट पॉइंट, मैनेजर इज द वन हु सॉल्व प्रॉब्लम्स. ऑफ कोर्स वी नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, but leader is the one who inspire people, who motivate people, and believe me, when people are inspired, problems will be solved. प्रॉब्लम होते ही उस वक्त है कि जब दिल नहीं चाह रहा होता काम करने को, और हमें कहा जाता है कि काम किया जाए. तो इसलिए when you are motivated, when you are inspired, I'm sure you will be a solution provider, you will be a problem solver. I'm sure you would like to become a leader, because leader is always a good manager. He knows how to plan, long-term plan, and when you plan long, we don't forget short. We organize our resources. We look what resources we have. We follow all the functions of management, and then we control our destiny. But we believe in change. We keep on growing. We learn, but we believe in lifelong learning. मैंने अर्ज किया था ना, पीएचडी करने के बाद 25 साल के बाद भी अगर एक शख्स कहता है आई एम रेडी टू लर्न, दिस मीन्स his knowledge will never be obsolete. He will never be out of the market. He will always be required. That is a leader. So leadership, my dear students, leadership is an ability. Everybody can develop. कोई जरूरी नहीं कि साहब बड़े शहरों वाले, कराची वाले ही करेंगे या लाहौर वाले अच्छे लीडर होते हैं. No. I've seen many people coming from village, settling in the cities, working hard, crossing all the obstacles, willing to take whatever it requires. They make themselves able. आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपको नजर यही आएगा कि people who are willing to take the challenge, they make themselves able. So they are able to influence and motivate people, others, towards organizational goals. What do they do? करते क्या हैं ये? कोई खास किस्म की जॉब करते हैं ये? नहीं, they are managers, but you can differentiate them. They will influence the goals, they will motivate the behaviors towards the goals, they will help to define a culture in the organization. Culture which is productive, culture which is pleasant, culture where people don't have to act as a policeman, where people don't have to watch people. They are willing to work hard, they are inspired enough that they will give you whatever is required. So let's then learn how leaders influence. What are the powers they have? What are the kind of powers available to them? How they use it? And what is the difference between a manager and a leader? Source of power number one, legitimate power. Of course, we are talking within the organization. Legitimate power. This is the power which comes from your position. Marketing executive, accounts executive, marketing manager, sales manager, head of the marketing position, dean of a school, assistant professor, professor, lecturer, headmaster, chief medical officer, medical doctor, software engineer, system analyst, chief technical officer, chief executive officer, chief financial officer. Position. आपकी पोजीशन जो है वो बताती है
इसकी पावर क्या है? एंड नेचुरली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर is higher than the chief financial officer. Chief financial officer is higher than the head of a department. A manager is lower than the head of the department. Dean of a school, dean of a faculty is higher than an assistant professor. So that is a source of power which we call legitimate power. We need it. आप में से मैंने कहा था ना, जो आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, पोजीशन, वो लेजिटिमेट पावर हो गई. पावर नंबर 2, सोर्स ऑफ पावर नंबर 2, रिवॉर्ड पावर. दिस इज द पावर बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ यू टू प्रोवाइड वैल्यूड रिवॉर्ड्स टू अदर्स. अच्छा साहब, इनको इंक्रीमेंट लगानी है, कितने % लगानी है, बोनस देना है, प्रमोशन देनी है, किस लेवल पर प्रमोशन देनी है, हायर करना है, ट्रांसफर करना है. These are the bases which gives you power, which is known as reward power. Number 3, coercive power. This is the power which makes you able to punish others, to fire them, to call them for explanation, to demote them, to take action against them. This is also given to you by the organization. बिल्कुल ऐसी कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, if somebody is caught cheating, what kind of action should be taken? That's a coercive power. Number 4, expert power. This is the power which is based on the possession of expertise which you have acquired with the passage of time, by working hard, by learning your process, by learning new tools and technologies, and people see towards you and they value you. बल्कि बाज़ औक़ात आप देखिएगा, आप अपनी क्लास में देखिए, वो स्टूडेंट जो अकाउंटिंग में अच्छा है, जो इकोनॉमिक्स में अच्छा है, जो जरा शाइनिंग है, स्टूडेंट्स वुड लाइक टू ऑफर हिम अ कप ऑफ टी. यार जरा आना, हमें भी बताना. उस स्टूडेंट के पास कोई फॉर्मल पावर तो नहीं होती. दैट्स व्हाट ही हैज और शी हैज, एक्सपर्ट पावर. जब आप उसको कहते हैं भाई जरा हमें भी बताना हाउ टू स्पीक गुड, how to improve communication skill, how to develop good networking skills, how to learn distributed systems, how to learn Java. तो जब आप उसको कह रहे होते हैं ना, जरा मुझे भी ये सिखा दीजिए, in fact you are taking him or her as a leader. Number 5, information power. This is the power which is based on access and control over the distribution of information. Number 6, referent power. These are the 6 types of powers. The last one is referent power. Referent का नाम आपको बता रहा है. This is the power which results from being liked by people. They like you. They would like to refer towards you. They admire you, or they would like to be identified with you. Now, why? I don't know. You look into it. क्यों आप किसी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं? क्यों किसी की तारीफ करते हैं? क्यों आप उसके आगे आगे पीछे पीछे चलते हैं? आप उसको रेफर कर रहे होते हैं. आप अपने दिमाग और दिल के अंदर उसकी तस्वीर को बनाए बैठे होते हैं. बेसिकली आपने अनइंटेंशनली उसको अपना लीडर तस्लीम किया हुआ होता है. लीडरशिप के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर हम इसको कहते हैं रेफरेंट पावर. अब देखिए, रेफरेंट पावर और एक्सपर्ट पावर या एक्सपर्टीज पावर, ये तो सब आदमी, सब लोग, लेडीज एंड जेंटलमैन, छोटे शहरों वाले और बड़े शहरों वाले, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, सब लोग ये डेवलप कर सकते हैं. ये तो द वे यू वर्क हार्ड, द वे यू विल स्पेंड योर एनर्जी, द वे यू मेक योर सेल्फ एबल, पीपल विल रियलाइज एंड पीपल वुड लाइक टू कम एंड स्पीक टू यू. देखिए, लोग हजारों मील का सफर करते थे और लर्न करने जाते थे उस स्कूल में, उस यूनिवर्सिटी में, उस प्रोफेसर के पास, उस मैनेजर के पास जिसके पास अच्छी स्किल्स होती थी. लेट अस सी हाउ वी कैन यूज दीज पावर्स
एंड स्पीकिंग ऑफ यूजिंग दी 6 टाइप्स ऑफ पावर्स, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि किस पावर को आप किस तरह से यूज करेंगे। मसलन हम कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ पावर्स ऐसी होंगी जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगी। मसलन जो मैंने 6 पावर्स आपको अभी डिस्क्राइब की, सोचिए कि कौन सी पावर रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। मैं नहीं मानता जी, बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है। कोर्सिव पावर, अगर आप डेली लोगों को फाइन करेंगे, धमकी लगाएंगे, उनकी छोटी छोटी गलतियों पर भी आप उनको वार्निंग देंगे, फायर करने की धमकी देंगे, रेजिस्टेंस पैदा होगी। दिस पावर शुड बी देयर। आई नो यू कैन टेक एक्शन, बट बी अ लीडर। मेक श्योर you inspire them. They don't make mistake. Teach them, show them, train them, coach them. उसके बावजूद आपकी ये पावर है coercive, लेकिन इसको अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, मेरा ख्याल है आप मुझसे एग्री करेंगे, इट क्रिएट रेजिस्टेंस। वो जो कहते हैं ना कि बच्चे को अगर आप रोज ही डांटेंगे तो बाज़ औक़ात फिर वो ढीठ बन जाता है। ढीठ इज रेजिस्टेंस। अच्छा भाई ठीक है, होके रहेगा, कुछ ना कुछ घबराएं क्या। तो इस पावर को सिलेक्टिवली और जुडिशियली इस्तेमाल करना चाहिए। कंप्लायंस पावर, लेजिटिमेट पावर, इंफॉर्मेशन पावर, रिवॉर्ड पावर, ये आपकी कंप्लायंस पावर्स हैं। लोग आपकी बात को सुनेंगे जब आपको पोजीशन मिली होगी, आपकी लेजिटिमेट पावर है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, पीपल विल लिसन टू यू। हां, साल के एंड पर लोगों को मालूम है कि आप उनकी इंक्रीमेंट दे सकते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। रिवॉर्ड पावर, दैट्स अ कंप्लायंस पावर। पीपल विल बिहेव, दे विल लिसन टू यू। लास्ट पावर जो सबसे अच्छी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, रेफरेंट और एक्सपर्ट। दैट गिव्स कमिटमेंट। नाउ कमिटमेंट कम्स फ्रॉम विद इन। आई गिव यू माई हार्ट, I give you my mind, I give you my body. I can sacrifice my whole life for you. Commitment. Because I know you are my master. You teach me. You coach me. You show me the way. You help me to grow. You help me to learn. Referent power, expert power. So my dear students, power कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे आपने यूज करना है, लीडर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, मैनेजर कैसे उसको यूज करता है। अब आइए फिर हम देखते हैं कि कौन सी थ्योरीज हैं, लीडरशिप की थ्योरीज, लीडरशिप के स्कूल्स के जो हम लर्न करना चाहेंगे। इनमें अर्ली थ्योरीज 2 हैं जो हम देखना चाहेंगे। दे आर कॉल्ड ट्रेट मॉडल एंड बिहेवियरल थ्योरीज। रिमेंबर जब हम मैनेजमेंट की थ्योरीज भी पढ़ रहे थे, उस वक्त भी हमने ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज की बात की थी, अर्ली बिहेवियरल थ्योरीज। लेकिन लीडरशिप के पर्सपेक्टिव के अंदर हम जरा ट्रेट मॉडल को भी देखना चाहेंगे कि वो कौन सी ट्रेट्स हैं, वो कौन सी क्वालिटीज हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए। ऑलराइट, leadership property is then set of those characteristics which you would like to attribute to a leader, to an individual which you think is a leader. The way he speaks, the way she talks, the way she walks. Let us see then what are those traits. Trait theory, the leadership trait model assume there must be some basic traits which should be present in a leader, and it should differentiate the leader from a non-leader. What are those traits? Let's take a look on them and see if you can develop those traits. Number 1, he is intelligent. She is intelligent. देखने से पता चलता है कि भाई डम नहीं है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है. Number 2, he has the ability to supervise a project. He has an ability to supervise a team, a group of people. होनी चाहिए. मैंने कहा था ना, people skill is very important. Number 3, he got the initiative and drive. And number 5, I got my own individuality. I am my own. Nobody is like me. Individuality. I'm confident, self-confident, risk taker. Remember we said entrepreneur, risk taker. Number 8, he's motivated.
उसको किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं. He or she is a driver of his own. Number 9, hardworking. When it takes longer time, when he needs to study 15 hours a day, 18 hours a day, he will do it. And the last point, self-assurance. Remember I said polka? The last A is assurance. अच्छा, कोई दूसरा उसको assurance नहीं देगा. Self-assurance. I will make my own decisions. I am my own accountant. I am accountable to myself. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो ट्रेट मॉडल अर्ली लीडरशिप थ्योरीज के अंदर लोग फिर ये देखते थे, ये ट्रेट्स जिसमें हैं वो लीडर है. और आज भी मैं ये समझता हूं ये ट्रेट मॉडल काम करता है. और फिर हम ये देखते हैं कि ये अप्रोच अगरचे इवेंचुअली इम्प्रैक्टिकल नजर आती है, इसलिए कि लिस्ट ऑफ ट्रेट्स तो फिर कभी कमी नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल ये ट्रेट्स कुछ होनी चाहिए. 10 की लिस्ट है, 15 बना लीजिए, 8 बना लीजिए, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो इंडिविजुअल में फिर होनी पड़ेंगी. नेक्स्ट टाइम फिर हम देखेंगे कि बिहेवियरल थ्योरीज क्या हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा एनर्जाइज टॉपिक है. पढ़ के आइएगा और देखिए आप में कौन सी ट्रेट्स हैं, 10 या इससे ज्यादा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लीडरशिप का टॉपिक, इट मेक्स यू लीडर. It teaches you how to influence others. It makes you unique. और देखिए, जब आप फ्रंट पे लीड कर रहे होते हैं, जब आप फ्रंट पे बैठे होते हैं, प्रेशर तो ज्यादा होता है, सब टीवी कैमरे आप पे लगे हुए होते हैं, लेकिन सीन भी फिर अच्छा नजर आता है, सब चीज क्लियर नजर आ रही होती है. तो लीड करना अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए रिस्क टेकिंग, सेल्फ अश्योरेंस, ड्राइव, इनिशिएटिव, ये ट्रेट्स होने चाहिए. I'm sure you can do it. You can also develop good communication skill. You can also develop good people skill. You can be also a very good leader. Can you? I'm sure you can. Try it. Develop it. Learn it. And the rest of your life, you will enjoy it. Thank you very much. I'll see you in the next session, and we'll continue on the issue and the topic and the concepts of leadership.